بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ آج کا ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے وچ سسٹم از بیسٹ فار پاکستان، پارلیمنٹری اور پریزیڈینشیل. سب سے پہلے اس ٹاپک میں ہم دیکھیں گے کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کیا ہے اور پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ کیا ہے اور دونوں کا ڈفرینس کیا ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ان دونوں میں سے کون سا سسٹم جو ہے وہ پاکستان کے لیے بیسٹ ہے، جس کو اپناتے ہوئے پاکستان ترقی کی راہوں پر گامزن ہو سکتا ہے. سب سے پہلے ہم پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کو دیکھیں گے. اس طرز حکومت میں ریاست کے صدر کو ملک کی آئینی سربراہ کی حیثیت حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش وغیرہ میں ہے. صدر ایک مقررہ مدت تک اپنے عہدے پر فائز رہتا ہے، لیکن اس صورت میں ریاست کا صدر برائے نام اختیارات کا مالک ہوتا ہے. قانونی طور پر اعلیٰ اختیار اس کے عہدہ سے منسوب تو کیے جاتے ہیں، لیکن وہ عملاً نہ ہی انہیں استعمال کر سکتا ہے اور نہ حکومت کے فیصلوں میں اس کی منشا اور مرضی کا کوئی دخل حاصل ہوتا ہے. اس طرز حکومت کی بنیاد لیجسلیچر اور ایگزیکٹو کے باہمی تعاون اور اشتراک عمل کے اصول پر قائم ہے. جتنے بھی منسٹرز ہوتے ہیں وہ لیجسلیچر کے ممبر ہوتے ہیں اور حکومت کی پالیسیوں اور ان کے فیصلوں کے لیے اس کے آگے جواب دہ ہوتے ہیں. وہ پارلیمنٹ میں حکومت کے نظم و نسق کے متعلق قوانین کا مسودہ پیش کرتے ہیں اور اس کو اکثریت کی حمایت سے منظور کراتے ہیں. پارلیمنٹ کے اجلاس کے دوران میں انہیں ہر وقت سوالات کے جوابات دینے کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے. ارکان اسمبلی اگر حکومت سے کوئی اطلاعات طلب کرتے ہیں تو وہ فراہم کرنا ہوتی ہیں، اور حکومت کی پالیسی پر اعتراضات اور بحث و مباحثہ کے دوران انہیں حکومت کے موقف کی حمایت کرنا ہوتی ہے. وہ اسی وقت تک برسر اقتدار رہتے ہیں جب تک انہیں لیجسلیچر یعنی پارلیمنٹ کی اکثریت کی حمایت حاصل رہتی ہے. اگر اسمبلی اس کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ پاس کر دے اور ان کے جو پیش کردہ قانون ہے یا جو مسودہ ہے اسے منظور کرنے سے انکار کر دے تو کیبنٹ کو استعفیٰ دینا پڑتا ہے. بصورت دیگر جو کیبنٹ ہے اس میں سربراہ ریاست یعنی صدر کو مجلس قانون ساز برخاست کرنے کا مشورہ دے سکتی ہے، اور ایسی حالت میں نئے انتخابات کرائے جاتے ہیں اور پھر جو پارٹی اکثریت کی مالک ہوتی ہے وہ حکومت قائم کرتی ہے. اس طرح کیبنٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی کی حیثیت رکھتی ہے اور اس کی زیر نگرانی انتظامیہ یعنی ایگزیکٹو اور قانون سازی کی رہنمائی کرتی ہے. اسی وجہ سے اس طرز حکومت کو پارلیمانی وزارتی یا ذمہ دار حکومت بھی کہا جاتا ہے. اگر ہم اس ڈائیگرام میں بھی پارلیمنٹری اور پریزیڈینشیل جو فارم آف گورنمنٹ ہے اس کا جو ڈفرینسز ہیں اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے دونوں سسٹم ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے. اگر پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں مزید ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ لیڈر ہوتا ہے، وہ پارلیمنٹ کا لیڈر بھی ہوتا ہے، وہ اپنی کیبنٹ کا سربراہ بھی ہوتا ہے اور تمام لاز اس کی سپرویژن کے اندر بڑھتے ہیں اور تمام طرح کی کوآرڈینیشن اور کوآپریشن ہوتی ہے کیبنٹ اور پارلیمنٹ کے جو ممبران ہیں ان کے درمیان. نیکسٹ جو ہے یہ ہے جی پریزیڈینشیل یا صدارتی طرز حکومت. صدارتی طرز حکومت سے مراد ایسا نظام حکومت ہے جس میں نظم و نسق کے تمام اختیارات صدر مملکت کے پاس ہوتے ہیں اور وہی امور حکومت کو انجام دینے کا ذمہ دار ہوتا ہے. صدر اپنے اختیارات کو آزادانہ طور پر استعمال کرنے کا مجاز ہوتا ہے جو اسے دستور مملکت نے عطا کیے ہوتے ہیں. یعنی ملک کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ بتاتا ہے کہ ملک میں صدر کے پاس اختیارات ہوں گے یا وزیر اعظم کے پاس ہوں گے. ریاست میں اگرچہ لیجسلیچر بھی ہوتی ہے، یعنی صدارتی طرز حکومت میں لیجسلیچر بھی ہوتا ہے لیکن اس کا صدر سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا، دونوں کا دائرہ کار ایک دوسرے سے الگ ہوتا ہے. صدارتی طرز حکومت میں صدر عوام کا منتخب شدہ نمائندہ ہوتا ہے اور ایک مقررہ مدت تک اپنے عہدے پر فائز رہتا ہے. صدارتی طرز حکومت میں صدر لیجسلیچر کا رکن نہیں ہوتا اور نہ کسی طرح اس کے سامنے یعنی لیجسلیچر کے سامنے جواب دہ بھی نہیں ہوتا. وہ اپنی مدد کے لیے وزراء مقرر کرتا ہے اور ہر وزیر ایک انتظامی محکمے کا انچارج ہوتا ہے، لیکن صدر کی طرح وزراء بھی جو ہیں وہ لیجسلیچر کے آگے جواب دہ نہیں ہوتے اور نہ ہی وہ لیجسلیچر کے رکن ہوتے ہیں.
वज़रा सिर्फ और सिर्फ सदर के सामने जवाबदेह होते हैं और सदर जिस वक्त चाहता है उन्हें अपॉइंट कर सकता है, जिस वक्त चाहे अपनी मर्जी के साथ उन्हें रिमूव भी कर सकता है। हुकूमत की पॉलिसी दरअसल सदर की पॉलिसी होती है और वज़रा सिर्फ सदर के मशीरों की हैसियत रखते हैं। सदर उनके मशवरे का पाबंद नहीं होता और ये उसकी अपनी मर्ज़ी पर मुनहसर होता है कि वो किसी मामला में उनकी राय तलब करे या ना करे, उस पर अमल करे या ना करे। वज़रा सदर के रहमो करम पर होते हैं और पार्लियामेंट के अंदर उन्हें कोई सियासी हैसियत हासिल नहीं होती। इस तर्ज हुकूमत में उमूमन वज़रा को ये हक़ हासिल नहीं होता कि वो बराह रास्त मजलिस कानून साज के सामने पेश हों या कानून का कोई मुसवदा उनके सामने पेश करें। इस तरह हुकूमत की बुनियाद एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर की अलहदगी के हुसूल पर कायम होती है, यानी सेपरेशन ऑफ पावर है। इससे हमें ये पता चलता है कि सदारती निज़ाम हुकूमत में लेजिस्लेचर जो है वो अपना इंडिपेंडेंटली काम करती है और एग्जेक्टिव अपना काम करती है, जुडिशरी जो है वो अपना इंडिपेंडेंटली काम करती है, लेकिन दोनों में चेक एंड बैलेंस जो है वो कायम रहता है। और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें सेपरेशन नहीं बल्कि क्लोज कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन है। अब हम सदारती तर्ज हुकूमत को अगर मज़ीद देखते हैं तो हमें पता चलता है सदर को पार्लियामेंट से अलहदा एक खुदकार हैसियत हासिल होती है। वो ना तो इंतज़ामी मामलात में मुकन्नना के ज़ेर निगरानी काम करता है और ना इसके वज़रा मुकन्नना के सामने जवाबदेह होते हैं। इस तरह सदारती निज़ाम में लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट मुसावी हैसियत हासिल रखते हैं, यानी जो लेजिस्लेचर है, जो पार्लियामेंट है और जो एग्जेक्टिव है, इंतज़ामिया है, उनकी हैसियत तकरीबन मुसावी जा रही होती है। एक दूसरे के ऊपर उनको किसी किस्म की कोई सुपीरियरिटी नहीं होती और वो एक दूसरे के दायरा अख्तियार में मुदाखलत नहीं करते। मज़ीद ये भी एक डायग्राम है जिससे हम समझ सकते हैं कि प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैं वो उनमें डिफरेंस क्या है। यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, दोनों में मेन जो रोल होता है वो वोटर्स का होता है। वोटर्स जो हैं वो अपने मेम्बरान को सामने लाते हैं, चाहे वो पार्लियामान को डायरेक्टली इलेक्ट करें या वो प्रेसिडेंशियल जो कैंडिडेट है उसको इलेक्ट करें। और उसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चीफ एग्जीक्यूटिव जो होता है वो सदर होता है। अब हम देखते हैं कि कौन सा सिस्टम जो है वो पाकिस्तान के लिए बेस्ट है। स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि बेस्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूनाइटेड किंगडम के अंदर है और बेस्ट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर है और दोनों सिस्टम्स दोनों स्टेट्स के अंदर बहुत सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। तो अब इन दोनों में से कौन सा जो है वो पाकिस्तान के लिए बेस्ट वन है, तो हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 में अगर हम देखें तो इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया गया है, लेकिन अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कभी भी स्मूथली चलने नहीं दिया गया। यानी हम देखते हैं कि पार्लियामेंट्री जो है वो गवर्नमेंट आती है, उसके बाद मिलिट्री रूल आ जाता है, फिर कोई ना कोई पार्टी इक़्तिदार में आती है, फिर जो है मिलिट्री रूल आ जाता है और ऑलमोस्ट इसमें 3 डेकेड्स लगे हैं मिलिट्री रूल के। तो इससे क्या हुआ है कि पार्लियामेंट्री जो स्ट्रक्चर है या पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने सक्सेसफुली उन्हें मौका ही नहीं मिला कि वो काम कर सकें। अब तो यहाँ पे हमें और इसको मज़ीद अगर हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को देखते हैं तो 1960 में अयूब खान ने आलमोस्ट 10 साल तक जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है। आल्दो कि वो डेमोक्रेटिक तो नहीं था, उसमें ऑटोक्रेटिक रूल था, लेकिन फिर भी वो एक एक्सपीरियंस था पाकिस्तान का। फिर हम 1971 से 1973 में भी तक का जो टाइम पीरियड है जिसमें ज़ेड भुट्टो जो है वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे हैं, तो वो भी पाकिस्तान का एक प्रेसिडेंशियल एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि पाकिस्तान के लिए जो बेस्ट वन सिस्टम है वो दोनों में से कोई भी हो सकता है अगर सिस्टम को एज इट इज़ अडॉप्ट किया जाए। प्रॉब्लम यहाँ पर सिस्टम के साथ नहीं बल्कि लोगों के साथ है, बिहेवियर्स के साथ है। हमारे जो बिहेवियर्स हैं उनमें डेमोक्रेसी नहीं है। प्रॉब्लम हमारे इदारों के साथ है, हमारे इदारे मजबूत नहीं हैं, यानी जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रही। लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव जो हैं वो अपना इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहे और मिलिट्री का जो रोल है वो पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा है। जमहूरी जो रवैये हैं उनका फुकदान है, करप्शन बहुत ज़्यादा है,
टॉलरेंस जो है वो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में बिल्कुल भी नहीं है। तो अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि वो ये सेटअप चलता रहे, एक पार्टी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, वो 5 साल अपने मुकम्मल करें और दूसरी आए दिन तीसरी। तो उससे ये होगा, जब डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है वो चलता रहता है तो उसमें वो सक्सेस की तरफ जाता है, उसकी जितनी भी ईवल्स हैं वो टाइम टू टाइम जो हैं वो ख़त्म होती रहती हैं, और जो लॉज हैं वो नए लॉज बनते रहते हैं, और सिस्टम सक्सेसफुली चलता है। और जैसे हम यूके के सिस्टम को भी देखते हैं तो उसको आल्दो कि वो बहुत सक्सेसफुल सिस्टम है, लेकिन उसकी इस सक्सेस के पीछे कई सदियां लगी हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान के लिए अभी जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये भी बहुत बेस्ट है, लेकिन इसमें हमारे पॉलिटिशियंस को सिंसियर होना पड़ेगा और उन्हें स्टेट इंटरेस्ट को अपने पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर तरजीह देना पड़ेगी। अगर हम पास्ट में हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जिन्होंने इक़्तिदार की खातर मुल्क की जो सियासी और मुआशी जो मफाद था उसको उन्होंने बालाए ताक रखा, उसको जो है वो पस पुश डाल दिया, और उससे क्या हुआ कि पाकिस्तान ऑटोमेटिकली जो है वो डी रेल होता रहा, और वो उतनी तरक्की नहीं कर सका जितनी कि हमारे साथ वजूद में आने वाले मुल्क इंडिया ने की है। तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक नॉर्म जो एग्जिस्ट कर रही हैं उनकी प्रैक्टिकल जो है वो इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन के साथ फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट जो है वो हमारे इदारों के साथ है, हमारे डेमोक्रेटिक बिहेवियर्स के साथ है, जो कि नहीं है। और ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इन सारे प्रॉब्लम्स को हल किया जा सकता है एजुकेशन के थ्रू, अवेयरनेस के थ्रू। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।